that, just to give you an idea, we are talking about the eastern Uttar Pradesh region. To make it clear to our viewers, remember, when you are talking about the fight for 80 seats of Uttar Pradesh, the one place which is the strongest area for non-BJP parties, it is this eastern Uttar Pradesh. And it is here that you have a sizable population of Muslims as well. There were 2 seats of which Mukhtar Ansari pretty much called the shots, where you had in Uttar Pradesh, Ghazipur, 19.4% Muslims, and you had 17% upper caste, which is where in Ghazipur, 11% upper caste and 10% Muslims. In Mau, there were 19% Muslims and 17% upper caste. Now, it is this vote for which people seem to think, or at least Samajwadi Party, Congress and BSP seem to think, that Mukhtar Ansari was the magnet Adil Hasan. पर क्या आप इस वोट के लिए, इस ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोट के लिए मुख्तार अंसारी के बचाव में उतर जाएंगे लोग? मैम, पहली बात कि 20 मिनट बाद कि आप जितना हर्षवर्धन त्रिपाठी को दिए और दूसरे लोग को दिए उतना आप हमें भी दीजिए। सर, आपके ऑडियो में ही खराबी है। मैं आपके पास आने की कोशिश तो कर रही हूं, बट आपके ऑडियो में खराबी है। लेट्स ट्राई एंड फिक्स इट। मीनवाइल विवेक साइलस रिस्पॉन्ड। Yes, ma'am. It's very, quite surprising. It's very incredible also, Padmaja ji, that we are talking about the Ansaris and the Rais, as you said, Alka Rai and Ansari. But no one is talking about where is Abbas Ansari. Abbas Ansari is in the NDA. He is supporting the Prime Minister Narendra Modi. Do you know that? Does anyone have the guts to say that the son of Mukhtar Ansari, the so-called Don Mukhtar Ansari, his son Abbas Ansari, who is in jail, is a supporter of NDA and he is a member of SBSP, the party who is supporting the NDA and Narendra Modi. How can you blame the Samajwadi Party? For everything it comes down to Samajwadi Party. A party who has always denied tickets to him, a party who has denied tickets to Atiq Ahmed, Vijay Mishra, Mukhtar Ansari and DP Yadav. Everything comes down to Samajwadi Party. Okay, why? everything comes down to Samajwadi Party. Why? I'll get Harshvardhan Tripathi to respond to that. But Adil Hasan is finally patched with us. There are other seats as well. These are just 2 seats where the Ansari family called the shots, but their effect was larger. It wasn't just limited to Mau and Ghazipur. If we take a look at eastern Uttar Pradesh, there are at least 6 Lok Sabha seats where this influence matters. Azamgarh, Varanasi, Mirzapur, Ghosi, Ghazipur, Balia, and these are seats from where Samajwadi Party hopes to make strong gains. They hope to win these seats. They've got high hopes pinned on seats like Ghazipur, where Afzal Ansari himself is contesting on a Samajwadi Party ticket. Azamgarh, which earlier was represented by Akhilesh himself, and this time also they hope to get it back. They lost the BJP in a bypoll. They hope to get it back. Mirzapur, where you have a sitting MP of the Apna Dal, which is an alliance partner of the BJP, Samajwadi Party or BSP hope to get it back. And that is the reason why, again I ask you Adil Hasan, क्या इन सीटों का इतना महत्व है कि मुख्तार अंसारी के शान में आज कसीदे पढ़े जा रहे हैं? कोई शान में नहीं पढ़ रहा है। जो दरबारी बैठे हुए हैं आपके साथ, उससे पूछिए, जब भाजपा सरकार राम रहीम को पेरोल पे पेरोल देती है तो उस पर मुंह से उनके क्यों नहीं निकलता है? जो आसाराम बाबू के सपोर्ट पे, जो रेपिस्ट के सपोर्ट पे निकलता है, क्यों नहीं निकलता है? जो आसिफा जैसी 8 साल की मासूम का रेप होता है उसमें क्यों नहीं निकलता है? जो स्वामी चैतन्यन और सेंगर के सपोर्ट पे जो भाजपा खड़ी रहती है उसके लिए कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं है। जो राम रहीम को हर दिन पेरोल देती है और मुख्तार अंसारी के बेटे को पेरोल नहीं मिल रहा है, उसके बाप के जनाजा में नहीं जाने के लिए, इससे बड़ा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। और आप बताइए, जहां पर कलकत्ता हाईकोर्ट का सिटिंग जज रिजाइन करके दूसरे दिन भाजपा ज्वाइन करे, जहां पर एयर चीफ मार्शल जाके ज्वाइन करे भाजपा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जाकर राज्यसभा ले ले, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज जाकर गवर्नरशिप ले ले, क्यों नहीं सवाल उठेगा? क्यों नहीं हम सवाल करेंगे? देश में लोकतंत्र है, ये नागपुर से नहीं संविधान से चलेगा। हर्षवर्धन जी की बात तो नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। मुख्तार अंसारी, जब मुख्तार अब्बास नकवी ने साबिर अली का डॉन का बोला था कि साबिर अली का अंडरवर्ल्ड डॉन है, उसको भाजपा ने लिया। किसको सब भाजपा बोलती है? जब अमित शाह को तरीपार किया गया तो भाजपा कहां को बोली था? यही हाईकोर्ट ने किया था। अरे सुप्रीम कोर्ट से बड़ा इस देश में कुछ नहीं है। लेट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। आप एम्स के डॉक्टर से अगर पोस्टमार्टम की मांगी, इसमें क्या दिक्कत होगी उत्तर प्रदेश सरकार को? है हिम्मत उत्तर
जेंडर का बचाव करे, जो हाथरस का बचाव करे, वो बात करती है मुख्तार। उसका स्वतंत्रता सेनानी की फैमिली से वाहिद गाजी तो सबसे ज्यादा मुसलमान है। वहाँ हिंदू लोग, हिंदू कम्युनिटी के लोगों को जिताते हैं चुनाव से, और वो जीत के आते हैं। आपको हिंदू मुस्लिम सिर्फ एंगल देना चाहते हैं, जिसको भी आप बैठाएंगे आप उनसे पूछिए। हिंदू मुस्लिम हम कोई एंगल नहीं दे रहे सर। द रिएक्शंस दैट वी आर गेटिंग, anyone would be a fool to not read through the messaging. If you have a समाजवादी पार्टी लीडर today saying आज अपने ही देश में मुसलमान सेफ नहीं है, एज इफ पता नहीं वो कोई राह पे चलते क्रिकेट खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे और किसी ने उनको मार दिया। भाई माफिया थे, लोगों को मार के अंदर गए थे, दिल के दौरे से मर गए। आप उसको कह रहे हैं कि हमारे देश में मुसलमान सेफ नहीं है। इसमें पता नहीं हम कौन सा एंगल दे रहे हैं। बट रिस्पॉन्ड टू दिस हर्षवर्धन त्रिपाठी, जो आदिल हसन कह रहे हैं, राम रहीम को लेकर के, गुरमीत सिंह को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हर कोई समाजवादी पार्टी, AIMIM, BSP, कांग्रेस को ब्लेम देने के लिए पहुंच जाता है। नहीं पद्मजा जी, मुझे लगता है कि रट के आने पर यही होता है। रटन तोता जो होते हैं ना, वो एग्जाम में भी फेल होते हैं और ऐसे जीवन में भी टीवी पर भी एक्सपोज होते हैं।